Hello, dear children. How are you? I am sure that you are preparing for your CBSE board examination in a good way. You have learned all the formulae, you have understood all the concepts, ray diagrams, circuits, all that. Keeping this in mind, I have brought light chapters good questions. Some are from NCERT exemplar, some are from last year question papers, and some are from here and there. Whatever I got good, I have brought for you. Okay, so I am starting with first question. There is a magical mirror and a person, a child, is standing in front of the magical mirror. Okay, what he is getting? He is getting that the head, the size of the head in the image is larger than the original head. Okay, the middle part, the stomach area, is of same size in that magical mirror, and the leg is smaller than the original leg. Okay, the child is standing in front of a magical mirror. What he is getting in the image, the head is larger, the middle part is same size, and the legs are smaller. Okay, the very first thing in this question is what you have to think. When you stand in front of any mirror, what you do? You keep yourself very close to the mirror. Okay, so now start thinking. Start thinking. Which type of mirror? So, what you have to tell in this question? You have to tell in this question that the upper part of the mirror, that magical mirror, is which type of mirror? मैजिकल है तो सब मिक्स है. अपर पार्ट जो मैजिकल मिरर का है वो कौन सा मिरर है, मिडिल पार्ट जिसमें सेम साइज दिख रही है वो कैसा मिरर है, और लोअर पार्ट वो कैसा मिरर है. ठीक है, तो आप कहाँ से सोचना शुरू किए कि भाई आई एम वेरी क्लोज, द पर्सन इज वेरी क्लोज टू द मिरर. ओके, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, इन विच मिरर इमेज इज मैग्नीफाइड. तुरंत आपको याद आ जाएगा, ओ कॉनकेव मिरर में व्हेन आई प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस वी गेट मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्ट इमेज. क्लियर हो गई बात. इसका मतलब ये है कि जिस हिस्से में मिरर के जिस हिस्से में वो बड़ी इमेज मिल रहा है, उसको बड़ा इमेज कहाँ मिल रहा था, ऊपर वाले में, तो ऊपर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया. बीच वाले में क्वेश्चन कहता है कि सेम साइज का मिल रहा है, तो ये प्लेन मिरर हो गया. और नीचे कह रहा है छोटी इमेज बन रही है, आप समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की साइज क्या होती है, छोटी होती है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर. कोई बच्चे परेशान हो सकते हैं कि सर ये कैसे मालूम कि नजदीक है. यहाँ तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट काम आएगा कि जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो हैं, तो आप 20 मीटर पे तो खड़े नहीं हो कि मिरर के नजदीक ही आप खड़े होते हो. तो ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि द अपर पार्ट ऑफ दैट मैजिकल मिरर इज कॉनकेव, लोअर पार्ट इज प्लेन मिरर, एंड द middle part is the plane mirror and the lower part is the convex mirror. All right, so this question was clear. So what is the learning objective? That the ray diagram cases must be very much clear. Okay, and then you have involved some critical thinking aspect in this question. The second question is, note down what is the second question. To obtain magnification plus 2, to obtain magnification plus 2 with a concave mirror, with a concave mirror of radius of curvature 60 centimeter, object distance you have to find. See, firstly I would like to explain here that plus means in magnification, if plus comes it means the image is erect, सीधी image, either it is lens or it is mirror. In magnification, if you are getting plus sign means image is erect. One thing, if magnification, this value is more than 1, it means it is magnified image.
इट इज मैग्नीफाइड इमेज। 1 है मैग्निफिकेशन, तो क्या है, इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया इमेज की हाइट। 0.5 है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। प्लस का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। माइनस मैग्निफिकेशन साइन का मतलब क्या है, इमेज इन्वर्टेड है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है बेटा लोग, वो कैसी है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, और कैसी है, इरेक्ट है। मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है, ये एक बात हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा में साइन कन्वेंशन की कर लूं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे पैरेलल ले लिया मैं साइन कन्वेंशन समझाने के लिए, रेज फोकस पे मिली। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस वी स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम पोल, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट होता है पोल से, मुझे ये मेजर करना है, तो ये मेजर करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेजर करना। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पोल से स्टार्ट होता है। ओके, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ मीन्स डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा इधर का, माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या, माइनस, क्योंकि देखो फोकल लेंथ यहां है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो इसी तरफ होगा। और ये सब जानते हो कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, हाफ होता है। चलिए अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/f। आप कहोगे सर जी न u मालूम है न v मालूम है, केवल f मालूम है, ऐसे कैसे u की वैल्यू आ जाएगी, u तो फाइंड करना है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m की वैल्यू दे रखा क्वेश्चन +2 माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, -2u, क्या हो गया, -2u हो गया, v इज इक्वल टू। अब लगा देता हूं ये फार्मूला में, 1/v की जगह -2u, u ऐसे ही रहने दो आप, u ऐसे ही रहने दो। f की वैल्यू क्या रख दिए, -30 रख दिए, -30 रख दिए। सॉल्व कर रहे हो आप, सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। क्या क्या सीखे क्वेश्चन से, थोड़ा रिकॉल करते चलो, अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो फिर कभी आप खुद से करो तो। एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 2u हो गया, -1 यहाँ किए, +2 यहाँ हुआ। कैलकुलेशन में गलती नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो 1/2u इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए एक बार फटाफट, काम आगे बढ़ाइए, काम आगे बढ़ाइए, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं। क्लियर, मैं बार बार कहता हूं, देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग वरी अबाउट आंसर्स ऑफ द लाइट चैप्टर। सर व्हाई, देखो, इफ यू आर वेरी मच क्लियर in the cases, different cases of image formation, you will be in position to verify your answer. how we will be in position to verify the answer? देखो भाई, ये पता चल गया बेटा जी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी, इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, कैसे मालूम सर, मैग्निफिकेशन 2 था, और सीधी है, और मिरर कॉनकेव है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। फोकस पहले मालूम है आपको 30 सेंटीमीटर, तो जो u आना चाहिए वो 30 से कम आना चाहिए, 15।
आगे बात समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस क्वेश्चन को लेके। एक ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, मिसलिनियस करा रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन। एक हेमी स्फेरिकल टाइप का लेंस बना हुआ है, हेमी स्फेरिकल टाइप का ग्लास स्लैब कह सकते हो, लेंस कह सकते हो, ये है, ये यहां पे परपेंडिकुलर है, बनाइए। यहां से एक रे सीधी ऐसे निकल गई, बताऊंगा सीधी ही निकलेगी भी। ऐसे कुछ रे डायग्राम बना हुआ है, ये एयर मीडियम है और ये है ग्लास, ये है ग्लास। पॉइंट्स का नाम दे दिया जाए, ओ है पॉइंट, ये पी है, रे का नाम दिया देगा क्वेश्चन अभी। ड्रॉन angle of incidence, note it down, the angle of incidence from air to glass at point O on the hemispherical glass slab is, hemispherical glass slab is, first option 45 degree, second option 0 degree, थर्ड ऑप्शन 90 डिग्री। चलिए लिख दूं मैं, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। क्या पूछ रहा है बेटा लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है? देखो भाई, सुनो, साफ साफ रे डायग्राम बुक में बना है कि ये रे साफ साफ दिख रही है कि सीधी जा रही है। छोड़ो बेटा इस चीज को, इधर आओ। ये देख के आपको डर लग रहा होगा, मेरा काम है, मेरा एम है इस वीडियो को बनाने का कि एक क्वेश्चन के साथ कुछ और जो इसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं बता दूं। ग्लास स्लैब लिए थे, कोई रे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे पड़ी थी, सीधी निकल गई थी ना, सीधे निकल गई थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहोगे? 90 कहना मत भूल के, नॉर्मल है, रे नॉर्मल के अलोंग ही पड़ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। कौन सर समझ गया? समझ गया। अगर रिफ्रैक्शन में रे सीधी निकल जा रही है तो इसका मतलब है वो किसके अलोंग पड़ रही है? दैट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। कम टू दिस क्वेश्चन, the ray is going straight, it means this is following the normal, तो मतलब नॉर्मल भी यही है। अगर नॉर्मल भी यही है इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। आगे बात समझ में? तो देखने से खतरनाक, खौफनाक, लेकिन क्वेश्चन था आसान, बेसिक इन्वॉल्व था, तो इसलिए आप कह सकते हो कि बढ़िया क्वेश्चन था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री, क्योंकि रे सीधी निकल जा रही है, नॉर्मल के अलावा जा रही है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। इसमें नहीं परेशान होना है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज म्यू, कितना दे दिया गया? 1.65, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड एल्कोहल का दिया गया 1.36,
विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एयर। अल्कोहल का 1.36, जाहिर सी बात है अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होगा, ठीक है, उससे कम डेंसर है, बहुत बढ़िया बात। What is the refractive index of flint glass with respect to alcohol? सुनो बेटा लोग, क्यों लिया इस क्वेश्चन को? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 10th में इस लेवल की चीजें नहीं है बेटा लोग, है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू refractive index of this flint with respect to air upon refractive index of alcohol with respect to air। कहोगे सर थोड़ा सा और समझा दीजिए। सुनिए भाई, मैं कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नोटेशन तो क्लियर है, इनको नहीं मालूम जान जिसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। all right, तो बस वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 1.65, इसकी वैल्यू 1.36, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात। और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा लिखिए, एक और लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर, नोट कर लिए इसको भाई, नोटेड। spherical mirror produces an image of, मिरर है, of magnification -1, m is equal to -1। सोचना शुरू कर दिए। प्लेन मिरर तो है नहीं, प्लेन मिरर में इमेज उल्टी बनती नहीं है, साइज भले ही 1 हो जाएगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, लेकिन उल्टा तो नहीं बनता, ठीक है। अच्छा भाई, कहाँ पे उल्टा बनता है? वो कॉन्वेक्स मिरर में तो उल्टा बनता नहीं, रियर व्यू मिरर है कॉन्वेक्स, ट्रक पीछे उल्टा थोड़ी दिखाई पड़ता है। अपनी कार में जो आप देखते हो रियर व्यू मिरर साइड वाला, तो उसमें इमेज तो सीधी ही दिखती है, और हमेशा जो ट्रक है उसकी साइज मिरर में छोटी ही दिखती है। ऐसे केसेस को याद करना है। तो पक्का ही ये मिरर कैसा है, कॉनकेव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ये भी सोचना शुरू कर दिए। 1 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इसका मतलब सी पे रखा गया है। तो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा एम क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कराना। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, उसी के नीचे बनती है और सेम साइज की बनती है। खैर आगे लिखिए, स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। दोबारा पढ़ रहा हूं, ये बताओ कि ये V है कि U है। स्फेरिकल मिरर produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror। तो ये किसकी पोजीशन दी गई बेटा लोग, ये किसकी पोजीशन दी गई है, ऑब्जेक्ट की दी गई है ना। साफ साफ लिखा है कि कहाँ रखा गया है वो। एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो यू दे दिया गया है आपको, यू कितना दे दिया गया, -50 सेंटीमीटर। क्लियर? सर आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो, मैं इतने से जो सॉल्व कर सकता हूं सॉल्व करूंगा। m इज इक्वल टू -v/u, -1 याद रखना, मैग्निफिकेशन
साइन के साथ ही जो कुछ रखोगे लेंस के फार्मूले में, मिरर के फार्मूले में, साइन के साथ। माइनस भी ये तो फार्मूले वाला है, u इज इक्वल टू +50। बोलो भाई, -1 रख दिए, ये हो गया तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, +50 आ गया भाई कि -50 आ गया? चेक करके बताइए, चेक करके बताइए। हाँ, कोई नहीं चेक करेगा, कोई नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -50। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ठीक। क्या प्लस आ सकता था, v प्लस आ सकता था? नहीं सर। क्यों नहीं सर? सर अभी आप बताए हो कि u क्या है, 50 है, मैग्निफिकेशन -1 है, -1 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, वही इमेज बनेगी। तो अगर फोकल लेंथ माइनस में है, u माइनस में है, तो v भी तो माइनस में ही होगा। बहुत अच्छी बात है। इसका तो आंसर बेटा लोग आप डायरेक्ट बताना, MCQ में आएगा। गहरी बात है, डायरेक्ट बता दोगे सर। जैसे मैं मैग्निफिकेशन देखा 1, समझ गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कान के मिरर के 2F पे रखा गया, सॉरी C पे रखा गया है, और C पे है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज तो बराबर ही है, तो ये वैल्यू आ गई। तो यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। आगे कुछ कहता व्हाट टाइप ऑफ मिरर, अब तो सब निकाल देंगे लोग। मिरर कैसा, कान के मिरर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द, बता दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर चलो बता दो भाई, बता दिए कि नहीं। फोकल लेंथ फार्मूले से सॉल्व करूं, चलो भाई फार्मूले से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट नहीं बताने का मन है तो फार्मूले से सॉल्व करो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बगैर फार्मूले के कौन बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखना सर, आप तो कर दिए थे लेकिन मुझे पता था, ये जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता था। u और v बराबर बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये क्या हो गया है, ये c हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, -25 सर। फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, -25। क्लियर, v -50, v -50, 1/f -2/50, एक बार -50, एक बार -50। f इज इक्वल टू क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, बढ़िया। नोट हो गया बेटा लोग, रिवाइज कराओ इस क्वेश्चन को, शायद कोई जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन दिया गया है -1, कहता है टाइप ऑफ मिरर बताओ, टाइप ऑफ मिरर बताओ। प्लेन तो कहोगे नहीं, क्यों नहीं कहोगे, माइनस आ गया है, प्लेन में इन्वर्टेड बनती नहीं है। कॉन्वेक्स कहोगे क्या, नहीं, कॉन्वेक्स में एक ही केस है। इमेज कैसी बनती है सर, ट्रक वाला बताए, हमेशा इमेज सीधी बनती है। ट्रक बहुत दूर है, ट्रक नज़दीक आ गया, कहीं भी आ गया, रियर व्यू मिरर में इमेज हमेशा सीधी दिखती है, तो माइनस तो है नहीं, तो पक्का हुआ कि कान की। ऑब्जेक्ट दिया गया, कहाँ पे रखा गया, 2 बार 3 बार पढ़ा ताकि आप पढ़ना जान जाओ। ऑब्जेक्ट है -50 पे, ये पूछा गया। फोकल लेंथ पूछा गया, फोकल लेंथ बता दिए, सब कुछ बता दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लोग फिगर बेस्ड, और ये मोस्टली बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है। क्या क्या पूछा गया सर, पता ही नहीं चल रहा है, पूछने का तरीका इसकी बड़ा गंदा था। कहता है अ लेंस फॉर्म्स, लिख लो बेटा लोग, अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज, अ ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ब्लर्ड इमेज कहता है ऑन ए स्क्रीन
as shown below, as shown below. ये है स्क्रीन, ये रे सीधी गई, ब्लड हुई कि नहीं भाई? चलो अभी नहीं कुछ बोल रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट लेंस, क्या लिखूं? दुनिया जान रही है। ये फर्स्ट पार्ट था, जो स्टेटमेंट दिया था अभी मैं, वो फर्स्ट पार्ट था। लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। लिखिए फिगर के बाद, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक टू द following, what changes can you make to the following to form a sharp and in focus image, in focus image on the screen. ए, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्वेश्चन। ए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ताकि आप समझो कि क्या पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये फर्स्ट पार्ट में इतनी बातें लिखी गई, अभी नहीं बताऊंगा क्या पूछा गया। सेकेंड पार्ट, पूरा क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, खूब जांच पड़ताल कर रखा हूं इस क्वेश्चन को। सेकेंड पार्ट, सुनीताज, नाम दिया जा रहा है, सुनीताज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHAL MOLOGIST suggests her, ऑप्टिक्स से बना है, जो चश्मा बनाने वाले हैं, suggests her to use a lens of power -2D, -2D to correct her vision, to correct her vision. इसका ए पार्ट, इसका ए पार्ट, what type of lens, what type of lens should she use, should she use. Second part, what should be the focal length of the lens, what should be the focal length of the lens. क्लियर? इसका सी पार्ट फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्या था? लेंस किस टाइप का है। सेकंड क्या था? उसकी बी पार्ट क्या था? उसकी फोकल लेंथ क्या है। सी पार्ट बोलने जा रहा हूं। सी पार्ट, ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर, शॉर्ट कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर in front of the lens of power -2D, उसी लेंस के सामने -2D, find the distance, find the distance where image is formed, image is formed. तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन आप लोग फटाफट पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, इमेज
यहां पे तो शार्प बन रही है, लेकिन यहां पे आ गया है, जाहिर सी बात है तो ब्लड बनेगी ही। मतलब क्या करना है आपको शार्प इमेज पाने के लिए? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। शार्प इमेज पाने के लिए भैया ये पॉइंट किसी तरह यहां चला जाए। अब बच्चा कह देगा सर जी स्क्रीन को खिसका के यहां कर दो। कह रहा नहीं, क्वेश्चन कह रहा नहीं भैया, ये मनमानी काम नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं उसमें बताओ। शार्प इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करना? बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन कह सकते हो। शार्प इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या तुम छेड़खान करोगे, हरकत करोगे, और फोकल लेंथ के साथ क्या करोगे? कम करोगे कि ज्यादा करोगे? क्या करने के लिए? यहां पे शार्प मतलब इमेज यहां बननी चाहिए, स्क्रीन यहां आ जाए, या ये पॉइंट खिसक के यहां चला जाए। कौशल बहुत आसान है। आप इसकी बात कर रहे हो ना, स्क्रीन को नहीं छेड़ने दे रहे हो, नहीं छेड़ूंगा मैं। इसकी बात आप करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। सर खूब पढ़े हम लोग केसेस, आप कह रहे हो केसेस क्लियर करो, ये पॉइंट हमें यहाँ ले जाना है। सर सारे केसेस में बहुत ध्यान से पढ़ा हूँ। एज वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर in case of convex lens, as we bring object closer, image goes away. पेज पलट के देख लेना भी बाद में कि जैसे जैसे कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हो बेटा लोग, इमेज क्या होती जाती है? दूर जाती है। सर जी आप कह रहे हो इसे यहां लाना है ना, पक्का हो गया कि ऑब्जेक्ट को नजदीक खिसकाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? पक्का 100% लिख लो। Object distance will be closer to the convex lens if we bring, detail लिख लो, if we bring object closer to the lens, we will get sharp image and in focus image. दूसरी चीज क्या है कि सर फोकल लेंथ कम कर दे हम लेंस की। क्यों फोकल लेंथ? लेंस अभी यहां है भाई, ये सब यहां आ जाता तो क्या हो जाता? सब काम बढ़िया हो जाता। कम फोकल लेंथ का मतलब क्या? रेस कन्वर्ज जल्दी हो जाती, तो इन फोकस बन जाता। अभी तो इमेज यहां जाके बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लिया जाए? जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? कम हो। क्लियर? ये पार्ट बढ़िया था। इसका उल्टा भी समझा दूं। अगर कहीं ऐसा होता भाई, कहता कि इमेज कहीं यहां जाके बन रही है, बेटा लोग सारा मामला पलट जाता। इस पॉइंट को यहां खिसकाना होता। मैं कह चुका हूं, प्रॉमिस किया हूं कि एक क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन बताऊंगा। सर अगर ये रे डायग्राम ऐसा बना होता, ब्लर इमेज बन रही होती, तो आप कहते सर जी इसको यहां लाना है, मतलब क्या करना है? पीछे खिसकाना है। नहीं, इमेज को पीछे खिसकाना है। इमेज पीछे तब खिसकेगी जब ये ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा। और सर फोकल लेंथ क्या करना है? सर फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा इसमें। बहुत बढ़िया। रेज वहां जाके मीट करे। रेज अभी यहाँ जो मीट कर रही थी, कहाँ मीट करे? तो यहाँ मीट करती, आगे जाके मीट करें। सारा केस उल्टा हो जाता है इसका। हो जाता है ना। सेकंड पार्ट तो आसान है बेटा लोग। माइनस है तो क्या पूछा गया? टाइप पूछा गया होगा। कैसा लेंस? अगर सेकंड पार्ट है ये, इससे इसका लिंक नहीं है, ध्यान देना, इससे इसका लिंक नहीं है। कह रहा सुनीता को डॉक्टर ने बताया -2 डायोप्टर का फोकल लेंस यूज करो। -2 डायोप्टर के फोकल लेंथ का लेंस यूज करो। तो क्या पूछा गया था बेटा लोग? आप लिखिए क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लेंस? सर कॉन्केव लेंस हो गया। माइनस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस होती है। ये कर दिए हम। सेकेंड पार्ट में फोकल लेंथ पूछे होंगे। पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 फोकल लेंथ होता है। सॉल्व कर ले रहे हैं हम। -2 हो गया, 1/f हो गया, तो f इज इक्वल टू -1/2। ये मीटर में है। किसमें है? मीटर में। सेंटीमीटर में 100/2 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? -50 सेंटीमीटर। ठीक। बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल के रूप में दे दिए हैं। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के आगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? 10 सेंटीमीटर पे।
यू क्या हो गया -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकाल लेना है, वी पोजीशन निकालना है, इमेज पोजीशन निकालनी है। बोलो भाई, लेंस फार्मूला, झटके में गलती मत करना। 1/v, u की जगह -10, f की जगह -50। आप सॉल्व मुझसे अच्छा कर लोगे। ये प्लस हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/10 हो गया ना भाई। बोलो 50 हो गया एलसीएम, 1 हो गया -5 -4/50, तो v इक्वल टू क्या आ गया -50/4। सर बिल्कुल सही। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, एक ही केस होता है, इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनती है। याद आ रहा है ना, कॉनकेव लेंस में एक ही केस है जनरली कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज बनती है। आगे बात समझ में। तो ये था, मैं इसकी अगली वीडियो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल से लेके आऊँगा। आगे बात समझ में। वो लाइट चैप्टर का नहीं होगा, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में लाऊंगा आप लोगों के लिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को करते समय आपको जो अपनी गैप एरिया आइडेंटिफाई हुई होगी कि हाँ भाई हमको जो केसेस नहीं है क्लियर, हमको पढ़ तो लिया था लेकिन भूल गया हूँ मैं, रुको, वीडियो को रोक देना, ले केसेस याद कर लेना, समझ लेना, मिरर के लेंसेज के रे डायग्राम क्लियर कर लेना, फिर इस वीडियो को देखना बेटा लोग, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि उसमें जो क्वेश्चंस मैं करूँ वो फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाए, इससे अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, टेक केयर।